السلام علیکم دوستوں ناظرین، آج ہم لوگ کلاس 10 اردو کا جو 2021 میں جو فائنل ایگزام ہوا ہے اس کا کوشچن پیپر اور ساتھ ہی اس کے سبھی آنسر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ 2018، 19 اور 20 کے جو اردو کے پریویس پیپر ہیں اس کا جو ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل فیضان کلاسز کے پلے لسٹ پر موجود ہے، تو آپ جا کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پریویس پیپر 2021 کو سولو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیو کوشچن کو سولو کریں گے اور پھر ہم اس کے سبجیکٹیو کوشچنز کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس بار جو اردو میں کوشچن پوچھا گیا تھا وہ ٹوٹل 100 کوشچن پوچھا گیا تھا، جس میں سے 50 کا جو جواب دینا تھا وہ لازمی تھا۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم ٹوٹل 100 آبجیکٹیو کوشچن پوچھے گئے ہیں ان کے سبھی جواب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو لطف الرحمن کی پیدائش جو وہ 1941 عیسوی میں ہوئی تھی، تو آپشن بی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی؟ تو پائتھاگورس۔ تیسرا سوال ہے کہ نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ 4 نمبر سوال ہے کہ غالب کے شامل نصاب خط کس کے نام ہے؟ تو کرامت علی ہمدانی کے نام۔ 5واں سوال ہے کہ مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ تو دلی میں۔ 6 نمبر سوال دیکھیں گے کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ تو انگریزوں نے۔ 7واں سوال ہے کہ بیدی سے انٹرویو لینے والی کون ہے؟ تو عصمت چغتائی۔ 8 نمبر سوال ہے کہ شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ تو ندى فاضلی۔ 9واں سوال ہے کہ ندى فاضلی کی تصنیف دنیا مرے آگے کس صنف نظر سے متعلق ہے؟ تو خاکہ۔ 10واں سوال ہے کہ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو 1908 عیسوی میں۔ 11 نمبر سوال ہے کہ کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو ایک درخت کا نام ہے۔ 12واں سوال دیکھیں گے کہ غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ تو اسد تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مہاشویتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ارجن۔ 14 نمبر سوال ہے کہ وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ تو پنجابی زبان۔ 15واں سوال ہے کہ تیرا دوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ جو سوال ہے یہ روشنی سے پوچھا گیا، آپ اس کا جو جواب ہے وہ کمنٹ باکس میں دیں۔ 16 نمبر سوال ہے کہ افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ تو بیٹا تھا۔ 17 نمبر سوال ہے کہ بھیم راؤ کس سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا؟ تو 5 سال کی عمر میں۔ 18واں سوال دیکھیں گے کہ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو لاہور میں۔ 19 نمبر سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1869 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 20واں سوال ہے کہ سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام جو تھا وہ عبدالسلام تھا۔ 21واں سوال ہے کہ جیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجیے؟ تو 40، جس سے کہ تعداد یعنی کہ سنکھیا کا پتہ چل رہا ہے۔ 22واں سوال ہے کہ باطن کی ضد کیا ہوگی؟ تو باطن کی ضد ظاہر ہوگی۔ 23 نمبر سوال ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو چادر جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے۔ 24واں سوال دیکھیں گے کہ تم پڑھتے ہو، اس میں جملہ میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ تو جمع حاضر صیغہ ہے۔ 25 نمبر سوال ہے کہ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد عدل ہوگی۔ 26واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے؟ تو پن گھٹ۔ اس کے بعد 27واں سوال ہے کہ میں آؤں گا کس فعل کی مثال ہے؟ تو فعل مستقبل، یعنی کہ اس میں مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ 28واں سوال ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے استفہامیہ ہے، یعنی کہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ 29 نمبر سوال ہے کہ عرض کا ہمسوت لفظ کیا ہوگا؟ تو عرض کا جو ہمسوت لفظ ہے وہ ہے عرض۔ ہمسوت لفظ اس کو کہتے ہیں جو سننے میں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کی معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ 30 نمبر سوال ہے کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جملہ مکمل کرنا ہے مناسب الفاظ سے، تو وہ ہے ہیں، ہم کتاب پڑھتے ہیں۔
31 नंबर सवाल देखेंगे कि शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई? तो सीतामढ़ी में। 32वां सवाल है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो देवर का रिश्ता था। 33 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। 34 नंबर सवाल देखेंगे कि निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो मलिका महर निगार था। 35वां सवाल है कि अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो मरकज़ी किरदार हैं। 36वां सवाल है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो है अजीम। 37 नंबर सवाल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 38वां सवाल है कि सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अलीगढ़ में मदफून है, यानी दफन किए गए हैं। 39 नंबर सवाल है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो मदरसा शमसुल हुदा में। 40वां सवाल देखेंगे कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था? तो भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। 41 नंबर सवाल है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो आसारुल सनादीद है। 42 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो घर पर हुई थी। 43वां सवाल है कि बुद्ध मजहब में नुरवान का क्या तस्वुर है? तो खुदा का इरफान हासिल करना। 44 नंबर सवाल है कि झेल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? तो नक़द निगाह है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो रेवड़ा दरभंगा था। 46वां सवाल है कि आर्य सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। उसके बाद 47 नंबर सवाल देखेंगे कि लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो PhD तक। 48 नंबर सवाल है कि उर्दू को पहला नावल किसे करार दिया गया? तो मरातुल उरूस को। 49 नंबर सवाल देखेंगे कि नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो दिल्ली कॉलेज में। 50 नंबर सवाल है कि हमीदा नसूह की कौन थी? तो बेटी थी। 51वां सवाल देखेंगे कि इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमूआ कौन है? तो आदमी के रूप। 52 नंबर सवाल है कि महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो जुबैदा। 53 नंबर सवाल देखेंगे कि सर सैयद की वालदा का नाम था? तो अजीजुन्निसा बेगम था। 54 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए? तो 476 ईस्वी। 55 नंबर सवाल देखेंगे कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो सकीना। 56वां सवाल है कि तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? तो 1877 ईस्वी में। 57 नंबर सवाल देखेंगे कि सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले से है? तो समस्तीपुर ज़िले से। 59 नंबर सवाल है कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए? तो अक्स। 60वां सवाल है कि सिराज बरकत अली का रिश्ता में कौन था? तो बेटा था। 61 नंबर सवाल देखेंगे कि अलम की जमा क्या होगी? तो आलाम। 62वां सवाल है कि दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? वो लोग पढ़ते होंगे, यानी कि इसमें शक की बात की जाती है। उसके बाद 63वां सवाल है कि वकील की जमा क्या होगी? तो वकला। 64 नंबर सवाल है कि इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए? तो रूह। रूह जो है वो मुअन्नस है। 65 नंबर सवाल है कि बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो जो मानी के साथ जो लफ्ज़ होता है उसे कलमा कहते हैं, यानी मानी वाले लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। तो बामानी का मतलब हुआ मानी वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो कलमा कहते हैं। अगला सवाल है कि जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुन्यत कहते हैं। 67वां सवाल देखेंगे कि रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा रुबाइयात होगी। 68वां सवाल है कि वकूफ़ से सिफ्त बनाइए? तो वाकफियत। 69 नंबर सवाल है कि ईदगाह क्या है? तो इसमें ज़र्फ़ है। 70 नंबर सवाल है कि किस उम्र में गालिब की शादी हुई? तो 13 साल की उम्र में। 71वां सवाल है कि गालिब की बेगम का नाम क्या था? तो गालिब की बेगम का नाम अमराऊ बेगम था। 72 नंबर सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो दारुस सल्तनत। 73 नंबर सवाल देखेंगे कि मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो शहबाज की बेटी थी। 74 नंबर सवाल है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो अफसाना निगार थे। 75 नंबर सवाल है कि चकबसित का इंतकाल कब हुआ? तो चकबसित का इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ था। 76वां सवाल है कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से? तो ईसा क़ब्ल पाकिस्तान से है। 77 नंबर सवाल है कि परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो कोलकाता से किया। 78वां सवाल देखेंगे कि ज़रूरत की जमा क्या होगी? तो ज़रूरत की जमा जो होगी वो ज़रूरियात होगी। 79वां क्वेश्चन है कि अक़वाल का वाहिद क्या होगा? तो कौल होगा।
कौल की जमा अकवाल होता है, अकवाल का वाहिद जो होगा वो कौल होगा। 80 नंबर सवाल है कि वो गया कौन फेल है, तो माजी मुतल्लिक है। 81 नंबर सवाल है कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था, तो सैयद अकराम हुसैन था। उसके बाद 82 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब मुर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा, तो आरिफ की मौत पर। 83 नंबर सवाल देखेंगे कि मिर्ज़ा शौक की लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था, तो तबाबत का था। उसके बाद 84वां सवाल है कि सलाम मछली शहरी किस सिनफ़ शायरी के शायर हैं, तो गीत के शायर हैं। 85 नंबर सवाल है कि ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, तो 7। 86 नंबर सवाल देखेंगे कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो अंग्रेज़िया बाबू। 87 नंबर सवाल है कि उर्दू के पहले साहब दीवाने शायर कौन हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। उसके बाद 88 नंबर सवाल है कि तू वो सूरज है तेरी खाली स्थान रह जाएगी, खाली जगह रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल करें, तो परछाइयाँ रह जाएंगी। 89 नंबर सवाल है कि परवेज़ शाकिर की शादी किससे हुई, तो डॉक्टर सगीर अली से हुई। उसके बाद 90 नंबर सवाल है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो आतिश के शागिर्द थे। 91 सवाल है कि वाओ मादूला ज़ेल किस लफ्ज़ में है, तो ख्वाब में है। 92 नंबर जो सवाल है वो है कि अशदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब तखल्लुस है। 93 नंबर सवाल देखेंगे कि ज़ेल में इलामत इस्तफ़हाम कौन सी है, तो ये जो ऑप्शन सी जो है जो निशान दिए गए ये इस्तफ़हाम है, यानी कि सवालिया निशान है। उसके बाद 94 नंबर जो सवाल है कि इसमें मुआरफा की कितनी किस्में, तो इसमें मुआरफा की 7 किस्में हैं। 95 नंबर सवाल है कि हस्ब का मुतरादिफ क्या होगा, तो हस्ब का मुतरादिफ जो होगा वह नस्ब होगा। उसके बाद 96वां सवाल है कि रहमत आलम को आप क्या कहेंगे, तो कुन्यत। 97 नंबर सवाल है कि दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो बोतल। उसके बाद 98वां सवाल है कि जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, तो पहाड़। 99वां सवाल है कि खुश्क की ज़िद क्या होगी, तो तर। और जो आखिरी 100वां सवाल है कि जेल में से लाहका को तलाश करें, तो अक्लमंद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था इसका मारूजी सवालों के जवाब। अब हम इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव जो सेक्शन बी है उसका जो पहला सवाल है कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लगभग 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये जो सवाल है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। पहला जो उन्वान दिया गया वो है सैलाब, दूसरा है वर्जिश, तीसरा है यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी। उसके बाद जो चौथा है वो है गर्मी का मौसम यानी मौसम गर्मा। और जो ई नंबर का जो उन्वान है वो है बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा। तो इन पांचों उन्वान में से किसी एक उन्वान पर 250 से 300 लफ्ज़ों में मजमून लिखना है। दूसरा जो सवाल है कि अपनी वालदा को ख़त लिख कर सेहत का ख्याल रखने को कहिए। या फिर इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो दूसरा सवाल ये भी लिख सकते हैं कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश कीजिए। तीसरा सवाल है कि दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए। तो ये जो टोटल सवाल है वो 20 है जिनमें से 10 के जवाब देना है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इनमें जो पहला सवाल है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। दूसरा सवाल है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम तो अख्तर था। सी नंबर जो सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफसानवी मजमूए का नाम बताइए जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ। डी नंबर सवाल देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये एक आलमी और संगीन मसला है। उसके बाद ई नंबर सवाल है कि फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी, तो नसूह की बेटी थी। फ़हमीदा जो थी वो नसूह की बेटी और हमीदा उनकी अहलिया थी। उसके बाद एफ नंबर सवाल देखेंगे कि भीमराव के साथ तुलबा और उस्ताजा का सलूक कैसा था, तो तुलबा और उस्ताजा का जो सलूक था वो बहुत ही हैरतनाक था, यानी कि बहुत ही ख़राब सलूक करते थे वो भीमराव के साथ। उसके बाद जी नंबर सवाल देखेंगे कि चकबसीत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। और अगला सवाल है कि अफसाना अर्जुन के किसी 2 किरदार के नाम लिखें।
आई नंबर सवाल देखेंगे कि शाहबाज ने शामिल निशाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है वो बुशरा है। उसके बाद अगला सवाल है कि उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। के नंबर सवाल देखेंगे कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मज़ाह के शायर हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि गालिब के उर्दू खतूत के कितने मजमू के नाम हैं। उनके 2 मजमूए के नाम लिखिए, उनके खतूत के 2 मजमूए के नाम लिखिए। एम नंबर सवाल है कि ज़ेर निसाब नज़म वो मुलाकात के शायर और मुतरज्जिम का नाम लिखिए। और जो आखिरी सवाल है वो यह है कि इसमें ज़मीर की तारीफ़ लिखिए। उधर दूसरे पेज पर फिर सवाल देखेंगे कि मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। उसके बाद अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। अगला सवाल देखेंगे कि अदब बराए अदब का क्या मतलब है। उसके बाद सवाल है फिर कि कमर जहाँ के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है। इस नंबर सवाल है कि क्या महमूद ने अपने दोस्त अजीम का मशवरा पर अमल किया था। और जो आखिरी सवाल है ये है कि भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला अख्तियार किया था। तो वो जो दिल बहलाने के लिए उन्होंने जो उनके पास खतूत आते थे, जो मशवरा चाहते थे उन्हें वो मशवरा देते थे, उनसे उनका दिल भी बहल जाता था। अब चौथा नंबर जो सवाल है वो ये है कि दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। यानी कि टोटल 6 सवाल दिए हैं जिनमें से 3 के जवाब देना है। तो ये जो सवाल है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 5 ही टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ए नंबर जो सवाल है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। उसके बाद बी नंबर सवाल लिखेंगे कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। सी नंबर सवाल है कि सर सैयद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। उसके बाद अगला सवाल है कि शामिल निसाब नज़म इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमलों में लिखिए। और ई नंबर सवाल है कि दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाइए। जैसे आफत, तो इसकी जमा आफात होगी। अदब की आबाद, बदन की अबदान, बेगम के बेगमात, ताज़िर के तवाज़िर, तोहफ़ा के तवाइफ, ख़ुद के ख़त का खतूत, खर्च का। उसके बाद ज़ेवर है, ज़ेवर के ज़ेवरात, सवाल का सवालात। और एफ़ नंबर यानी कि जो आखिरी सवाल है वो है कि दर्ज झेल मुहावरात में से किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला जो मुहावरा यह है कि फूले ना समाना, दूसरा है तारे गिनना, तीसरा है आसमान के तारे तोड़ना, चौथा नंबर है ईद का चांद होना और 5वां है जहर के घूंट पीना। 6 नंबर देखेंगे कि आँख का तारा होना। उसके बाद 7वां है जान के लाले पड़ना, 8वां है अपना उल्लू सीधा करना, 9वां है गर्म होना और 10वां जो है वह है ज़मीन में गिर पड़ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।